slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No I'm not giving up, no I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play. Welcome back to the channel. This is Akash and you're watching I'm back already. ये लोग मील का आटा इस्तेमाल करते हैं आजकल हर जगह है ना। आपको दिखेगा कि लोग मतलब मैदे वाली रोटी आती है, वो अपने पास वो नहीं मिलेगा आपको। चक्की का आटा इस्तेमाल करते हैं। मील का करोगे तो उसमें बहुत ज्यादा मिलावट रहती है। ये सिस्टम रहता है। ये आलू है, जैसे पहाड़ी आलू है, ये मसाला बनता है इसका। इसको मसाले को चेक करके देखो, आप मसाले से ही पता चल जाएगा। वो तो ठीक है, वो साइज दिखा दो एक बार प्लेट साइज का। आपको प्लेट का साइज दिखा रहा हूँ, ये लार्ज है। इसके बाद 22 इंच का है, ये 24 का जो है। इसके बाद एक और आएगा जी पराठा, अभी जो नया निकाला है 31 इंच का पराठा निकाला है, 2100 ग्राम का। 3100 रुपए का पराठा, 31 इंच का पराठा। अच्छा 31 इंच का, 2.5 फुट से भी ज्यादा का। अच्छा जैसे 24 का है वो 31 का रहेगा, 7 इंच बढ़ जाएगा, करीब करीब इतना बढ़ जाएगा चारों तरफ से। तो वो बनेगा पराठा। उसमें 151 वैरायटी के साथ डाल रहे हैं पराठे को। चटनी, रायते अलग अलग बनाते हैं हम लोग। फिलहाल खाने चलते हैं, मेन्यू आया नहीं, 2-3 दिन में डिस्प्ले कर देंगे मेन्यू। तो ये वाला स्मॉल है, वेरी स्मॉल है। ये स्मॉल रहता है जी। स्मॉल जैसे मतलब ये आप 3 बंदे हो ना तो इसका सही मटेरियल आ जाता है सर खाने के लिए। स्मॉल का क्या होता है, जैसे अब आपकी उम्र के बंदे हैं ना, हमारी उम्र के बंदे 2-2 खा जाते हैं, 3-3 खा जाते हैं। अपने शहर में ये जो 3 पराठे खाने की जो लोग बताते हैं ना, 3 पराठे किसी भी ने भी नहीं खाए 3 पराठे आज तक। ये सब नकली फोटो लगा रखे हैं। जिस पराठे को खाने के लिए ये लोग 50 मिनट देते हैं ना, उसी पराठे को खाने के लिए मैं 100 मिनट देता हूँ। और जिस बंदों की ये फोटो लगी होती है ना, इनमें से 2-3 बंदे तो रोहतक के ही हैं। वो हमारे पास क्यों नहीं आए, दूसरे के पास कैसे चलेंगे। और ये 2010 में स्टार्ट किया था, 2013 में बड़ा पराठा शुरू किया था, 2014 में पहली बार न्यूज आई थी। उसके बाद MTV पे आया था मेरा करण कुंद्रा के साथ प्रोग्राम आया था, होटल विस्ता में। ये खाने के स्वाद की गारंटी हम लोग इसलिए देते हैं क्योंकि हमने खुद 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है मैंने कुकिंग का, अशोका होटल से, ITDC से। 2 साल बॉम्बे जॉब करके आया हूँ, 2 साल TGI फ्राइडेज में किए दिल्ली में। उस आदमी के 350 रेस्टोरेंट है वर्ल्ड में। और सबसे मेन बात ये तो है खानों की बात। सबसे मेन बात पता क्या है,
ये जो मसाले हैं ना ये अपने खुद के बनाते हैं जी, देसी। ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आपने इसको हाथ में लेके सूंघ के देखो, MDH का भी देखा होगा, MDH वाले के पास ये मसाला नहीं मिलेगा। ये अपना देसी बनाते हैं। इसको खुशबू लोगे तो बहुत ही अलग खुशबू है। 4-5 साल तक मसाला खराब नहीं होगा, इसकी ओरिजिनलिटी के सोर्स से। फिर बाकी जैसे देसी हैं अलग अलग बनते हैं, जैसे 1200 रुपये का पराठा, वो पूरा ड्राई फ्रूट का बनता है, काजू का तो ये डाल के, काजू है, बादाम है, अखरोट है, इन चीज़ों का बनता है। ये अपनी जैसे देसी मसाले। हम लोग आपको, हमारे पास आपको बाहर का मसाला बाजार का एक तो ये और एक ये चाट मसाला, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा अपने पास। देसी है बाकी इसके बाद। सब कुछ देसी है जी। हमारे पास खाना खाने के बाद बंदा ये नहीं बोलेगा कि हम होटल से खाना खा गए हैं। और एक बात, मेन बात, जैसे दिन की गारंटी है कि जुबानी चलेगा, मतलब किसी तरह का वो नहीं होएगा। सिस्टम ऐसा है जी खाने का। जो हमारे ये जो बंदे हैं ना, जो इनके पास बंदे आते हैं, जो कॉर्नर वाले हैं, इनके पास बंदा आता है बाहर का। इनके पास आप कभी भी देख लेना, लोकल कस्टमर नहीं आएगा। ये बाहर का बंदा इसलिए आता है मार्केटिंग क्योंकि उसे पता होता है कि ऐड हो रखी होती है, जैसे ऐड करते हैं मार्केटिंग कर रही है ना। मार्केटिंग है बस, और कुछ नहीं है। लोकल बंदा आपको भाई इनके पास नहीं मिलेगा बैठा हुआ, बाहर का ही बंदा मिलेगा जितना है। जैसे आप आए, आप पूछ रहे थे तपस्या। अब देखो एक चीज और है, ये जैसे मिक्स वेज का पराठा बनाते हैं, ये किसी भी चीज का पराठा है, एक आलू को छोड़ के बाकी ऐसे बनाते हैं, ये ऐसे खुल जाता है सर। अगर ये मैदा होगा ना तो खुलेगा नहीं। सारे पराठों को ऐसे खोल दूंगा, वापस बंद कर दूंगा। सारी यहाँ जितने भी नकल खुली हुई है ना इंडिया में, और ये तो पहली बार देखा ये तो। ये आपको मिलेगा नहीं। बड़े पराठे को भी खोल दूंगा, ये तो छोटा पूरा पूरा फुल जगह लूंगा, ऐसे फूलता है जैसे रोटी। और आलू का पराठे को ऐसे फुला देंगे, तवे के ऊपर इतना ऊपर उठा देता हूँ पराठे को यहाँ पे। आपने कभी ऐसे फूलते हुए देखा होगा, मेरी वीडियो आपने देखी नहीं है। अपने पराठों की फोटो, एक चीज और बताता हूँ आपको, पराठे कहीं भी इंडिया में आपने पराठे देखे हैं, पराठों की ऐड देखी है, पराठों की फोटो देखी है, पराठों की सिकाई ऐसी नहीं देखी होगी आपने कभी भी, जैसी हम लोग कर देते हैं। क्योंकि ये सब काम का होता है, जिसको आखिर तक नॉलेज है वही काम करेगा। ये देखिए, ये भाई, ये देखो सब पराठों की फोटो की आप शक्ल देखोगे ना, इनके पराठों में आपको कहीं नहीं ऐसा मिलेगा। ये तो भाई साहब खा रहे हैं। बेटा एक बार सामान आ जाते हैं यहाँ। ये किस्म के पराठा कौन सा मिक्स वेज? ये मिक्स वेज का है जी, लार्ज, उसके बाद एक्स्ट्रा लार्ज आएगा। तो हाँ जी, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा लार्ज आएगा। चलो खाते तो देखते कैसा है। बाल ही खराब हो जाता है हेलमेट पहनने के बाद तो। पराठा मस्त है एकदम, सही है, पहली बार खाया है, सही है। कैसा लग रहा है पराठा? बढ़िया भाई, मस्त, मजा आ रहा है बताओ भाई कैसा लग रहा भाई। है? एक नंबर का पराठा है, एक नंबर का। ये चटनी हरी वाली हाथ में देंगे, एक बाटी भर के। So guys, we are done with paratha and now we are just about to leave. एक पराठा 3 जनों के लिए बहुत है, बहुत क्या, थोड़ा काफ़ी ज़्यादा ही हो गया। लगता नहीं अब शाम तक भूख लगेगी दोबारा। अब हम चल रहे हैं वापस घर की ओर और टाइम हो गया लगभग 10 बजे के आसपास का टाइम हो गया। मैं एक बार दिखा रहता हूँ, यहाँ से हमने खाया है जस्ट बालाजी भारत का सबसे बड़ा पराठा, और उसके बिल्कुल पास में तपस्या पराठा, क्योंकि जब हम लोग आए थे तो ये बंद था, तो हमने यहीं पे खा लिया पराठा। और बाइक की हालत हो गई काफ़ी ख़राब, गंदी हो गई खड़ी खड़ी। तो भाई मज़ा आ गया। ये क्या पेट्रोल पंप पेट्रोल भरवाइए, पेट्रोल। ये हालत हो गई मेरे बाइक की, इतनी गंदी हो रखी है, काफ़ी ज़्यादा।
हाँ सही था पराठा, वैसे ज़्यादा बुरा भी नहीं था भाई पराठा अच्छा था, बहुत है, एक बहुत है। करके ज़्यादा था हमारे लिए 3 बंदों तीन जन मतलब 3 बंदे के लिए ठीक है, अच्छा खासा मतलब पेट भर गया है। 4 बंदे भी खा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। खैर वो तपस्या और इसका पता नहीं जो दूसरा नाम है, सबका अपना अपना वो होता है। उसकी थोड़ी प्रमोशन ज़्यादा है इसलिए लोग उसके नाम पे आते हैं, और उसके पास में ये है तो इसलिए इनके पास भी आ जाते हैं। सही था भाई, 400 रुपये बहुत बढ़िया था। हाँ कितने का पड़ा हमें एक पराठा? 360 का पराठा था। अच्छा 360 रुपये का पराठा था, हमने उसके बाद 2 चाय ली थी। अच्छा कोई नहीं, सही है। तब संडे को एक राइड तो ऐसी होनी चाहिए, मतलब घूमने निकले इतने दूर, अपना GFR जा के बोर हो गए बिल्कुल ही। चले यस चलो। संडे राइड का तो मज़ा ही कुछ और होता है भैया, क्या बताऊँ, इतना मज़ा आता है ना राइड करने का। इसलिए जब भी संडे को राइड होती है ना, मुझे रात भर नींद नहीं आती। और मेरे साथ रात को भी कुछ ऐसा हुआ है, रात को लगभग 3 बजे के आसपास मैं घर पहुंचा हूँ। उससे पहले मैं था अपने दोस्त के पास, और लगभग 3 बजे घर पहुंचा हूँ। उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आई। फिर मुझे लगभग 4 बजे करीब सोया हूँ, और 6 बजे फिर उठ गया वापस राइड पे आने के लिए। तो ओवरऑल मैं 2 घंटे ही सोया हूँ। ऐसे ही मौसम में राइड करने का मज़ा आता है, ना ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा ठंड हो। विदाउट हेलमेट but I ride always with proper gear, helmet, gloves, jacket, knee guard, everything. Squats. Let them go. We don't want to race with you guys. You guys are stupid. अरे जान दो अलग ही फील होगा मैं छिछोरा बनती बिल्कुल पसंद नहीं, नाम करते ना ऐसे कोई साथ मतलब रेस करना चाहते। क्या फायदा, बिना हेलमेट के चला रहा है, हमें दिखा रहा है कि हाँ बाइकर है, उल्टी सीधी चला रहा है। थोड़ी सी उसमें बैलेंस बिगड़ेगा और खुद गिरेगा, लगेगी इसको भी। हमें दिखा रहा भगा के। हाईवे पे आजा बेटा, बता देंगे किसे बोलते हैं बाइक चलाना। वो देखते रेसर मैं कह रहा मैं तो बाहर में जाओ भाई तुम। अबे 150 थी 150 हाँ। मैं क्या अभी अपनी बाइक भगा दी, दिखेगा नहीं कहाँ रह गया। अपनी बाइक भगा दी, दिखेगा नहीं कहाँ रह गया। दिखा रहा है मैं कहीं से क्या हो गया, मैं कह रहा से लकवा मार गया। मेरे को क्या नहीं बाइक पता, कैमरे को देखते ऐसे ऐसे कर रहा, मैं कहा भाई से क्या लकवा मार गया। ग्लोव्स, बाइक की, एंड लेट मी टेक आउट हेलमेट। Free fall from the sky, the trust it speaks through your eyes. I'm diving into the sea, in a jungle where they hungry for me. Oh, in a world of greed, I know you're watching out for me. We all need hope and a hug. Show
you love from above, sun shining down. Calling for an SOS, I'm falling. Need an SOS, I'm calling. Need an SOS, I'm falling. SOS. With you we'll fly through the sky. I'm in a muse, I'm in a dream. I drink your potion, only one that I see. In a world of greed, the rain is pouring down on me. We all need hope and a hug. Show you love from above, sun shining down. Calling for an SOS, I'm falling. Need an SOS, I'm calling. Need an SOS, I'm falling. Need an SOS. आ रहा है क्या भाई? बहुत थक गया हूँ, लेकिन मज़ा तब भी आ रहा बाइक चलाने में। गला सूख रहा है, प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, हालत बिल्कुल डाउन हो रखी है, लेकिन बाइक चलाने का मज़ा तब भी आ रहा है। मैं उसको वेट कर रहा हूँ, कहाँ रह गया। Haha, bitch. Come on, baby, come on, come on. Come on. Come on. Oh my god, आगे निकल गया वैसे। रुक जाओ मैं friendly races are always fun. Seriously. रुक जा भैया, रुक जा, रुक जा भैया, मेरे बाइक का ब्रेक नहीं लग रहा। भैया क्या होगा? ओह शिट, रुक जा भैया, रुक जा भैया, रुक जा, रुक जा, मेरी बाइक का ब्रेक नहीं लग रहा। ब्रेक गया भाई।
ओह शिट। हाँ प्रेशर खत्म हो गया था इसका एकदम ही, अभी थोड़ा लग रहा है। हो गया, सही हो गया, प्रेशर खत्म हो गया था इसका। वो तो अच्छा यहाँ पे ट्रैफिक में आके रुका, मैं बाइक भगा रहा था अच्छी तरीके से। अब सही हुआ, थोड़ा प्रेशर बन गया इसका। इसमें पता क्या, मैं ब्रेक लगा रहा, थोड़ा थोड़ा लूज होते गया, और लूज होते होते मैं कह रहा ब्रेक नहीं लग रहा, पता नहीं क्या हो गया। अब सही हो गया, चलो फिर अपनी औकात पे आ जाते हैं। स्कूटी पे थे, हाँ जो लड़का लड़की थे, हाँ बिना हेलमेट के घूम रहे हैं। अब सही काम कर रहा है मेरे। मैं कह रहा हूँ मैं ब्रेक लगा रहा, मैं ब्रेक थोड़ा लूज हो गया, मैं कह रहा इसमें तो तार भी नहीं है तो ये कैसे लूज हो गया। चलो तो सही हो गया, हाँ अब सही लग रहा, अब सही लग रहा है। चलो आ जाते अपने औकात पे फिर। तो यहीं से अपनी राइड सुबह स्टार्ट हुई थी और टाइम आ गया वापस घर जाने का। ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हम अपने अपने घर। एंड आज का दिन सही था, ज़्यादा मतलब बुरा नहीं कह सकते, अच्छा था। वो बात अलग है कि ज़्यादा लोग होते तो ज़्यादा मज़ा आता है। हाँ मिलते फिर नेक्स्ट राइड पे। चलो घर चलते भैया। चलो भाई, इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे ख़त्म। मैं आज तो अपने मतलब ब्लॉग में अपने कैमरे के सामने में ज़्यादा आया नहीं, क्योंकि मेरी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रखी थी। बहुत ज़्यादा नींद भरी हुई आंखों में, बहुत थका हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा बता नहीं सकता। आँखें ना बिल्कुल कैसा बताऊँ, ये समझ लो मैं आँख खोल के मतलब सो रहा हूँ, बहुत गहरी नींद में हूँ उस टाइम में। रात में सोया नहीं ढंग से और सुबह राइड पे चला गया और अब घर जाके दोबारा सो जाऊँगा। तो जब जाकर नींद पूरी होगी। सो चलो बाय, ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पे ख़त्म। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। एज ऑलवेज बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ।